All right, so today we are going to talk about learn more about Python. I hope the sessions that we had till now for Python, you are all practicing enough and you're also able to do the daily questions. Okay, the people who were not able to do the daily questions earlier, I still don't see you answering in the questions. So I'm not sure you are spending enough time on learning Python. Okay, it's just a language, right? It's not too difficult. Only thing is you have to spend some time. So if you're not spending the required time, you will never get it. So पाइथन के लिए जितना टाइम लगने वाला है, okay, उतना टाइम उसको देना ही पड़ेगा. So make sure you're giving enough time to learn Python. It's about giving respect to the topics. Okay. So if you want to learn some skill, it requires some kind of dedication. I see some I see many students, I mean most of the students are dedicated, but then there are still some students who are not finding time or who are not prioritizing enough. Okay, so there's no thing like I don't have time. It's always about, do you have priority or not? Okay? If you prioritize it, you will be able to find out the time as well. Okay, all right, so anyways, let's get started. Today we are going to talk about errors and exceptions. We will try to understand what exactly is error and what exactly are exceptions and so on, and how they are handled in Python, and how would you handle if there is something runtime exceptions or runtime errors that you need to do. Okay, so in Python there are mainly two main kind of errors. So the people who have already started coding, they may have seen many times they are getting syntax errors, right? So syntax error is when you forget about the indentation, या फिर आप लोग सेमी कोलन या कोलन भूल जाते हो, प्रिंट स्टेटमेंट में आप राउंड ब्रैकेट देना भूल जाते हो, या फिर रिटर्न स्टेटमेंट कहीं और लिख देते हो. तो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर सिंटैक्स. ठीक है, तो जो भी आपके ग्रामर के रिलेटेड एरर्स या फिर इश्यूज हैं, वो सब सिंटैक्स एरर में जाते हैं. और एक्सेप्शंस वो होते हैं जो कोड एग्जीक्यूट करते वक्त आते हैं, जैसे कि वेरिएबल नॉट फाउंड, राइट? सो अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको वेरिएबल नॉट फाउंड या फिर वेरिएबल नॉट डिफाइंड ऐसे एरर्स आते हैं बहुत बार, करेक्ट? सो दोज आर एक्सेप्शंस. वो एरर तभी आता है जब पाइथन उस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है, तब वो एरर आता है. सिंटैक्स एरर तब आता है जब एग्जीक्यूशन भी नहीं हो रहा है. सबसे पहले तो आपका फंक्शन, आपका जो प्रोग्राम है, स्क्रिप्ट, उसको पार्स किया जाता है. ठीक है, उसको पार्स करके उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, उसके बाद में रन करने के लिए जाता है वो फंक्शन या फिर स्क्रिप्ट. तो जब वो पार्सिंग के वक्त एरर्स आते हैं तो उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर्स, और जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तब एरर आते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस. ओके, या फिर रन टाइम एरर्स भी बोलते हैं उसको. इमेजिन करो आप कोई टू व्हीलर चला रहे हो और आपने टू व्हीलर के ऊपर बैठते ही मे बी आपने बटन नहीं प्रेस किया या फिर चाबी नहीं लगाई, एंड देन यू ट्राई टू स्विच इट ऑन, राइट? सो इट्स काइंड ऑफ अ सिंटैक्स एरर, कि मतलब आपने जो रिक्वायर्ड मिनिमम है वो नहीं किया अभी तक. आपने चाबी लगा के ऑन नहीं किया इग्निशन, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द कार टू ड्राइव, right? Which you are expecting the vehicle to be able to ride it, which is not possible. Okay, whereas exception could be कि आप गाड़ी चला रहे हो और चलाते वक्त कुछ तो एरर आ गया या फिर कुछ तो प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से आपको गाड़ी रोकनी पड़ी, या फिर आपकी गाड़ी सडनली रुक जाती है. नहीं? अगर आपको ब्रेक्स के इश्यूज के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा जब ब्रेक्स बहुत पुराने हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसे झटके मारना शुरू कर देता है वो, राइट? So suddenly the brakes will just, if it's a shoe brake, it will just suddenly uh, break the vehicle and stop you at a particular whenever you're driving, right? So that kind of thing is called as exceptions. क्योंकि जब आप execute कर रहे हो, जब आप run कर रहे हो, तब आपको error आ रहा है या फिर तब आपको रोका जा रहा है. Same thing happens in Python too.
व्हेन यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड, तब आपको जब एरर आ रहा है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एरर। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सेप्शन तब होता है, ये ग्रीन कलर का लाइन जो है आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है, सडनली एक्सेप्शन आता है, तो एक्सेप्शन के आते ही आपको एक एक्सेप्शन नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। इमेजिन करो एक वेरिएबल रिटर्न होता है जिसका नाम है एक्सेप्शन, और उस वेरिएबल के पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन क्या है, वो एक एरर एग्जैक्टली था क्या, वो एक्सेप्शन था क्या एग्जैक्टली, राइट। तो उसका डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अगर एरर आता है या फिर एक्सेप्शन आता है तो डेवलपर जो होता है जिसने कोड लिखा हुआ है उसको वो सॉल्व करना होता है, करेक्ट। अगर उसको सॉल्व करना है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसको। जब आप रन करते हो और आपको एरर आता है, अगर आपको सिर्फ इतना बोला कि एरर आया है, आपको कुछ हेल्प होगा क्या उसका? अगर आपको पता ही नहीं है एरर कहाँ पे है, क्यों आ रहा है, तो कुछ हेल्प नहीं होगा। यू यू आर जस्ट ब्लाइंड। दैट यूज्ड टू हैपन इन अर्लियर डेज, जब मैग्नेटिक टेप पे कोड लिखा जाता था, okay? तब ऐसा होता था कि एरर एग्जैक्टली कहाँ पे है, फिर एक्सेप्शन कहाँ पे एग्जैक्टली, वो समझ में नहीं आता था, फिर जल्दी पता नहीं चलता था। बट इन दीज डेज द इंटरप्रेटर्स या फिर आपके जो कंपाइलर्स है वो काफी एडवांस्ड है, जो आपको रन टाइम एक्सेप्शंस बता सकते हैं कि, और डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। जितना ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन हो सकता है उतना ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करते हैं। आपका काम इतना होता है कि वो डिस्क्रिप्शन ठीक से पढ़ना और समझना कि एग्जैक्टली क्या एरर हुआ होगा या फिर क्या एक्सेप्शन एक्सेप्शन आया होगा। okay? तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप ग्रीन कलर जो लाइन है आपकी, विच मीन्स कोड इज एग्जीक्यूटेड एंड सडनली देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आती है, आप एग्जिट कर देते हो आपके कोड को, जो स्क्रिप्ट इज नो लॉन्गर रनिंग एंड यू एग्जिट। आप जब पाइथन सॉरी कैगल में जब आप लिखते थे कोड, तब आपको वो इनपुट के वक्त एरर आता होगा, राइट। इनपुट के वक्त आपको आता होगा कि टाइम आउट एक्सीडेड या फिर कुछ, तो अलग अलग एरर आते थे। दैट वाज बिकॉज एक्सपेक्टेड था कि इनपुट चाहिए, लेकिन जब आप सेव करते हो तब वो रन करने जाता है और उसको इनपुट मिलता नहीं है, करेक्ट। दैट इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ एन रन टाइम एक्सेप्शन और एक्सेप्शन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है जीरो डिवीजन एरर। मतलब जब आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो, तो मैथ्स में पता आपको, राइट, एनी नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, करेक्ट। यू यू कैन नॉट डिफाइन इट, इसीलिए आपको एरर सेंड कर दिया जाएगा। यू विल बी गेटिंग एन एरर कॉल्ड एज डिवीजन बाय जीरो। जब आपको डिवीजन बाय एरर जीरो आता है, इसका मतलब आपको ये फिक्स करना पड़ेगा, ये जीरो जो डिनोमिनेटर में, इसको चेंज करना पड़ेगा। इधर यू हैव टू रिमूव दिस डिवीजन, और ये आपको गिव एग्जैक्टली कि करना क्या है। यहाँ पे जब ऐसे जीरो आता है डिनोमिनेटर में, तो आपको करना क्या होता है, आपको वो कोड करना पड़ेगा टू अवॉइड जीरो डिवीजन एरर, विच इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो सेकंड है, 4 प्लस स्पैम इंटू 3 लिखा हुआ है। स्पैम के बारे में ऊपर कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है। स्पैम क्या है, वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, नंबर है, फ्लोट है, ऑब्जेक्ट है किसी चीज का, कुछ भी नहीं पता है। बेसिकली योर स्पैम इज नॉट डिफाइंड, एंड दिस काइंड ऑफ एन एरर इज कॉल्ड एज नेम एरर, एंड दिस इज ऑल्सो रन टाइम एक्सेप्शन या फिर एक्सेप्शन। ये तभी होगा या फिर ये तभी मिलेगा जब ये कोड एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर इस लाइन पे जाऊंगा। अगर 10 लाइंस है तो ऊपर से एग्जीक्यूट करते हुए आऊंगा मैं, और जहां पे एक्सेप्शन आता है दैट इज माई रन टाइम एक्सेप्शन। ये भी एक रन टाइम एक्सेप्शन है, विच इज टाइप एरर। यू आर ट्राइंग टू अपेंड या फिर ट्राइंग टू ऐड, एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, इन दोनों को आप ऐड कर ही नहीं सकते, दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है। अगर आपको दोनों के ऐड करना है तो दोनों का डेटा टाइप सेम चाहिए, ये भी इंट चाहिए, ये भी इंट चाहिए। अगर आपको कॉन्कैटिनेट करना है तो ये स्ट्रिंग चाहिए, ये भी स्ट्रिंग चाहिए, लेकिन दोनों का डेटा टाइप अलग है। यहाँ पे एक है स्ट्रिंग और एक है इंटेजर, तो कैन नॉट हैपन अगेन। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ टाइप एरर या फिर रन टाइम एक्सेप्शन। तो जब भी आप कोड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको रन टाइम एक्सेप्शंस जब भी आते हैं, तो सबसे पहला काम है आपका पढ़ना, ट्रेस ब्रैक में या फिर आपके टाइप एरर में एग्जैक्टली बोला किया गया है। ओके, वो एरर में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है उतना जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो लोग देते हैं आपको, ठीक है। आपका काम इतना होता है कि आप या तो एक्सेप्शन समझो या फिर एक्सेप्शन को गूगल करके
पता करो कि एक्सेप्शन है क्या वो। और क्या क्या एक्सेप्शन देखे हैं आपने अभी तक जब आपने रन किया है कोड कैगल में या फिर अपने खुद के किसी और एनवायरनमेंट में? आर देयर एनी अदर एक्सेप्शन दैट यू हैव सीन जो आपको याद आ रहा होगा? सर वेरिएबल नॉट डिफाइंड। वेरिएबल नॉट डिफाइंड जो है सेकंड वाला, यहाँ पे नेम एरर, नेम्स पे स्पैम इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट? यस सर। राइट, व्हाट एल्स? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आया होगा आपको जब आप लिस्ट को एक्सेस कर रहे थे और लिस्ट में कोई इंडेक्स ऐसा यूज कर रहे थे जो प्रेजेंट ही नहीं है आपके इसमें। आया था किसी को इंडेक्स का एरर लिस्ट में या फिर स्ट्रिंग में? कभी कभी राइट, इंडेक्स पर आता था सर। आता था ना, तो दैट वाज बिकॉज आप एक लिस्ट क्रिएट करते हो और एक लिस्ट में 4 ही एलिमेंट्स है एंड यू आर ट्राइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ फिफ्थ एलिमेंट। फिफ्थ एलिमेंट तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो इंडेक्स में ही प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट? तो दैट इज एन इंडेक्स एरर विच अगेन इज अ रन टाइम एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एरर या फिर एक्सेप्शन। ओके, व्हाट एल्स? यस अक्षय? नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर। नॉट इम्प्लीमेंटेड मतलब आपने एक फंक्शन यूज करने की कोशिश की और फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन ही प्रेजेंट नहीं है। आपने एक फाइल को ओपन करने की कोशिश की, आपकी वो फाइल ही प्रेजेंट नहीं है, राइट? दैट इज आल्सो फाइल नॉट फाउंड, करेक्ट? करेक्ट सर। टाइप एरर भी एक है। टाइप एरर आता है जो यहाँ पर है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है टाइप एरर का, राइट? यू आर ट्राइंग टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग एंड इंटीजर, दो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को आप एक साथ अटैच करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन से बहुत सारे एरर है, आपको बस वो समझना होता है कि पाइथन विल ट्राई इट्स बेस्ट कि आपको बताए एक्सेप्शन क्या है या फिर एरर क्या है, बट इट्स अप टू यू कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है? और ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। देयर इज नो सीक्रेट फॉर्मूला या फिर देयर इज नो थिंग कॉल्ड एज याद कर लो और ये आपको याद रह जाएगा। ओके, दैट विल नेवर हैपन। हेलो सर। यस, सर हम जैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं तो एक्सेप्शन भी क्रिएट किए जा सकते हैं क्या? करेक्ट, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस बोलते हैं उसको। ऑलराइट, वो हम लोग जब क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। लेकिन आप एक्सेप्शंस भी क्रिएट कर सकते हो। आप यूजर डिफाइंड आप बोल सकते हो कि यूजर ने अगर मुझे नंबर की जगह पे स्ट्रिंग दे दी है तो मैं एक यूजर को एरर देना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेड मुझे नंबर है लेकिन आपने स्ट्रिंग दे दिया। सो दैट इज अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। पाइथन को तो चलेगा, नंबर चलेगा, स्ट्रिंग चलेगा, लेकिन आपके प्रोग्राम को नहीं चलेगा वो। तो अगर आपके प्रोग्राम को कुछ नहीं चलता है तो आप खुद से यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस बनाओगे, यूजर डिफाइंड एरर्स क्रिएट कर सकते हो आप। ओके सर। यस, ऑलराइट। तो जब भी आपको रन टाइम एक्सेप्शंस आते हैं और अगर आपको उसको हैंडल करने होते हैं या फिर लेट्स से आपको एक एरर आता है कि फाइल नॉट फाउंड, ठीक है? एक फाइल को आप रीड करने जा रहे हो और वो फाइल प्रेजेंट ही नहीं है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, और आपको एरर आ जाएगा कि यार ये फाइल प्रेजेंट नहीं है और मैं एग्जिट हो रहा हूँ। लेकिन इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग आपको अल्टरनेट लोकेशन भी दे सकते हो फाइल का। आप बोलोगे ठीक है, अगर ये लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं है फाइल और आपको एरर आ रहा है तो व्हाई डोंट यू ट्राई ऑन दिस डिफरेंट लोकेशन, ये सेकंड डुप्लीकेट लोकेशन यहाँ पे ट्राई करो, करेक्ट? जैसे मैंने बोला आपको ट्राई करो, same thing happens is you will try to run some code, and if that code gives you an exception, let me I think mouse मेरा दिख नहीं रहा आप लोगों को, let me stop sharing and start sharing the full screen. Okay, तो अगर आप एक कोड रन करने की कोशिश करते हो और आपको एक्सेप्शन आता है या फिर वो कोड रन नहीं होता है, कुछ तो एरर आता है,
तो आप उसको हैंडल करोगे. सो दिस इज कॉल्ड एज हैंडलिंग अ रन टाइम एक्सेप्शन, हैंडलिंग अ रियल टाइम एक्सेप्शन, रियल टाइम एरर. ओके, तो विल ट्राई टू रन सम कोड, और यहाँ पे कभी एरर आता है तो आपका कोड का एग्जीक्यूशन चला जाता है एक्सेप्ट ब्लॉक में. सो दिस इज एक्सेप्शन ब्लॉक. ओके, और एक्सेप्शन ब्लॉक में आप बोलोगे कि ठीक है, अगर ये फेल हो जाता है तो ये ट्राई करो, या फिर ये एक मैसेज है, ये मैसेज मुझे प्रिंट करना है और मुझे एग्जिट नहीं करना है मेरे प्रोग्राम को. लेकिन ठीक है, अगर यहाँ पर एरर आ जाता है और ये मैं ट्राई कैच के अंदर नहीं लिखता हूँ तो मेरा प्रोग्राम पूरी तरह से एग्जिट हो जाता है और मैं स्टॉप हो जाता हूँ, मेरा एग्जीक्यूशन ही बंद हो जाता है. लेकिन अगर मुझे एग्जीक्यूशन बंद नहीं करना है और मुझे कंटिन्यू करना है, मे बी कुछ और रीट्राई करना है या फिर किसी और यूजर से ट्राई करना है, सो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर हैंडलिंग एक्सेप्शंस. और हैंडलिंग एक्सेप्शंस तभी कर सकते हो आप जब आप उसको ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखते हो. ठीक है, तो उसका सिंटैक्स ऐसा है, यू विल राइट अ ट्राई कोलन, यहां पर कोड जो आपको ट्राई करना है, अगर इस कोड में से कोई भी एक लाइन फेल हो जाती है तो आपका जंप हो जाएगा एक्सेप्ट में, फिर ये एक्सेप्ट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा. अगर ये सारा कोड विदाउट एनी एरर्स एग्जीक्यूट हो जाता है तो आप फाइनली में जंप करते हो डायरेक्टली. सॉरी, अगर ये इसका पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है सक्सेसफुली तो आप एल्स में जंप करते हो, एल्स के बाद आप फाइनली में जंप करते हो. ठीक है, अगेन ट्राई में आप कुछ कोड लिखोगे जो आपको ट्राई करना है, ये कोड एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कोड एग्जीक्यूट करते वक्त कोई भी एरर आता है तो आप जंप करोगे एक्सेप्ट ब्लॉक में, और यहां पर आप जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट करने जाओगे. अगर इसके वक्त भी एक्सेप्शन आता है कोई तो फिर एग्जिट हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि जब हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर का कोड रन कर रहे हैं तब कोई एरर नहीं आ रहा है हमें. ठीक है, तब अगर कोई एरर नहीं आता है तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर का, फिर हम फाइनली में जंप करेंगे. अल्टरनेटिवली अगर आप ट्राई के अंदर का कोड रन कर रहे हो और कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रहा है, पूरा कोड स्मूथली रन हो जाता है, तब आप डायरेक्टली जंप करोगे एल्स में, एल्स से जंप करोगे फाइनली में. ठीक है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपका जो फाइनली का कोड है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा. ओके, आपका जो फाइनली के अंदर वाला कोड है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा. अगर एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन नहीं आता है, कुछ भी हो जाए तो भी आपका फाइनली का कोड हमेशा एग्जीक्यूट होता है. एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे. मैं myfile.txt नाम की फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो ये ओपन नाम का फंक्शन है जो इनबिल्ट फंक्शन है, अगेन बिल्ट इन फंक्शन है. तो ओपन राउंड ब्रैकेट मेरे फाइल का नाम .txt, यहाँ पर अगर मेरा फाइल कहीं और होगा, किसी पाथ पे होगा, तो मैं यहाँ पर फुल पाथ दे दूंगा, या फिर सी कोलन डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स जो भी रहेगा वो फुल पाथ, पूरा पाथ यहाँ पे देना है और आपका फाइल ओपन करोगे आप. ठीक है, अगर आपके फाइल ओपन करते वक्त कुछ भी एक्सेप्शन आता है जैसे कि फाइल नॉट फाउंड, तो आप एक्सेप्ट ब्लॉक में जंप करोगे. ठीक है, तो कौन से एक्सेप्ट ब्लॉक में जंप करना है वो डिपेंड करता है कौन सा एरर आया आपको. अगर आपको ओएस एरर नाम का एरर आता है तो आप ओएस एरर नाम के एक्सेप्ट ब्लॉक में जंप करोगे. अगर आपको वैल्यू एरर आता है, जैसे कि आप कोई डेटा टाइप हो जो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते लेकिन आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते, जैसे कि नाम होगा किसी का संतोष. ओके, अगर आपको संतोष को इंट में कन्वर्ट करना है, इंट में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, वैल्यू एरर आ जाएगा. तो जब भी वैसे कुछ होता है तब आप एक्सेप्ट वैल्यू एरर के ब्लॉक इसमें जंप करोगे. आपको लिखना पड़ता है ये, लेकिन अगर आपको जंप करना है यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा. लिखोगे क्या कि प्रिंट करो एरर को और बस एग्जिट करो. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है ट्राई कैच का. फाइल को ओपन करो, अगर यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आता है तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा और एग्जिट हो जाएगा. अगर फाइनली ब्लॉक लिखा होगा तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि फाइनली ब्लॉक है ही नहीं यहाँ पे, वो ऑप्शनल है. अगर आपने फाइनली लिखा होगा तो ही एग्जीक्यूट होगा. लेट मी जस्ट सी कि कुछ. ओके ओके, एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझते हैं हम लोग.
सबसे पहले मैं एक वैल्यू एरर सॉरी सिंटैक्स एरर डाल देता हूँ, ठीक है। सिंटैक्स एरर बोल दूंगा 1+। सेशन स्टार्ट हो रहा है मेरा, लेट्स जस्ट गिव इट सम टाइम। देखो ये सिंटैक्स एरर है, ठीक है। अगर सिंटैक्स एरर यहाँ पे है और अगर मैं 1+1 यहाँ लिखता हूँ तो भी ये रन ही नहीं होगा। अगर मैं इसको प्रिंट भी करता हूँ तो ये रन ही नहीं होगा, ना ये रन होगा ना ये रन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिंटैक्स एरर है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक सेकेंड सॉरी सिंटैक्स एरर है, ठीक है। सिंटैक्स एरर जब आता है तब मेरा कोड पार्स ही नहीं होता और मेरा कोड कन्वर्ट ही नहीं होता मशीन रीडेबल फॉर्म में। तो ये जैसे कि वैसे पूरा का पूरा कोड कुछ भी रन नहीं हो रहा है इसमें से, ओके। ये हो गया आपका सिंटैक्स एरर। जब आपको एरर या फिर रन टाइम एक्सेप्शन लाना होता है तब लेट्स से आई जस्ट डू दिस 1/0, ठीक है। तो पहले ये एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद में ये एग्जीक्यूट होता है। देखते हैं होता है क्या। पहले प्रिंट हो गया मेरा 2 यहाँ पे, उसके बाद में जब ये एग्जीक्यूट करने गया तब मुझे एरर आया 0 डिवीजन एरर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर या फिर एक्सेप्शन, ओके। इसके पहले जो दिखाया था दैट वाज एन सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर के वक्त ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे का तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं क्योंकि उसमें एरर है, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे कि ठीक है 1/0 लिखा है, इसके बाद में मैं नीचे लिखता हूँ प्रिंट। लो अभी क्या हो रहा है, पहले ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसको मैं भी फर्स्ट बोल देता हूँ, प्रिंट 1+1 की जगह पे, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट प्रिंट हुआ, उसके बाद में 1/0 एग्जीक्यूट करने गया और मुझे एरर आ गया। जैसे ही मुझे एरर आया उसके बाद में मैंने नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये एरर आते ही एग्जिट हो जाता है कोड, ठीक है। जब भी मुझे रन टाइम एक्सेप्शन आता है या फिर एरर आता है तो मैं एग्जिट हो जाता हूँ, इसके आगे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मुझे इसके आगे का एग्जीक्यूट करना है तो मुझे इसको ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में डालना पड़ेगा, प्रिंट सेक्शन ऑकर्ड, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले प्रिंट एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट, उसके बाद में 1/0 ट्राई किया इसने एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन जब इसने ट्राई किया तब कुछ तो एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन आते ही ये एक्सेप्ट में जंप कर गया और उसके बाद में उसने प्रिंट कर दिया हेलो। ये भी प्रिंट हो गया, इसके नीचे का भी प्रिंट हो गया। इसके पहले के एग्जांपल में क्या हुआ था, 1/0 जब मैंने एरर डाला था तब उसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ट्राई एक्सेप्ट की वजह से क्या हुआ, जब मेरा एक्सेप्शन आता है रन टाइम तो उसको मैं हैंडल कर पाता हूँ या फिर उसको मैं अल्टरनेटिव कोड देता हूँ इसको, ठीक है। अगर ये फेल होता है तो ये रन करो और कंटिन्यू करो मेरा एग्जीक्यूशन, एग्जिट मत करो तो प्रोग्राम को। एक और बात, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट बोलता हूँ सेकंड और यहाँ पर मैं प्रिंट बोलता हूँ थर्ड, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले फर्स्ट प्रिंट हुआ जैसे कि वैसे, फिर मैं ट्राई में गया, फिर मैंने इसको प्रिंट किया, ये भी प्रिंट हो गया, लेकिन जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तब मुझे एक्सेप्शन आ गया। जैसे मुझे एक्सेप्शन आ गया या फिर रन टाइम एरर आ गया तो मैं यहाँ से जंप करके पहुंच गया एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट में पहुंचती मैंने एक्सेप्ट में का कोड रन किया और प्रिंट कर दिया नेक्स्ट एलिमेंट। ये थर्ड कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एरर यहीं पे मिला और इसके नीचे का कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब भी मुझे एरर आता है उसके नीचे का कभी एग्जीक्यूट नहीं होता, ओके। जब भी मुझे रन टाइम एक्सेप्शन आता है, रन टाइम एरर आता है, उसके नीचे का कभी एग्जीक्यूट नहीं होता, वहीं से कोड एग्जिट हो जाएगा आपका। अगर मेरा ये प्रिंट करने के बाद में मैं फिर से 1/0 लिख देता हूँ, ओके, तो ये प्रिंट करेगा, इसके बाद में एरर आ गया, इसके बाद में नीचे कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि इसकी यहीं से इसको एग्जिट करना पड़ेगा, ये ट्राई कैच के अंदर नहीं है, ओके। तो ऑलवेज रिमेंबर, ट्राई कैच के अंदर अगर आपको कोई कोड पे डाउट होगा कि ये रन होगा नहीं होगा,
तो आपको उसको ट्राई कैच में डालना है, एक्सेप्ट उसको हैंडल करना है, फिर लास्ट में जो भी उसको, अगर आपको कोड एग्जीक्यूट करते रहना है तो एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो अगर आपको जैसे थोड़ी देर पहले बोला गया था कि आप यूजर डिफाइंड बना सकते हो क्या, आप रेज करोगे ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड एरर, रेज वैल्यू एरर, दिस इज एरर। देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले तो 1/0 आपका डिवाइड बाय 0 एरर आ गया, उसके बाद में आपने ये एरर बनाया खुद से, ये यहाँ पे एरर हुआ रेज, ठीक है, वैल्यू एरर क्रिएट हुआ आपका एक नया वैल्यू एरर नाम का, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड एरर, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। और भी तरीके हैं, जब हम लोग क्लास वगैरह पढ़ेंगे तब मैं सिखाऊंगा, बट दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट वन, दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड एरर्स। वैल्यू एरर या फिर कोई भी एरर आप बना सकते हो, असर्शन एरर्स, जब आपको कोई चेक करना है कोड, स्पेशली अगर आपको टेस्ट करना है कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग एल्स और नॉट, दैट कम्स अंडर assertion error. Okay, now let me just pause here for some time and see if you all are understanding, following, या फिर any doubts, any questions. I'll give the recording of this one, so don't worry. अगर आपको डाउट्स हो आ रहे होंगे या फिर कंफ्यूजन हो रहा हो तो यू हैव टू रीविजिट दिस अ कपल ऑफ टाइम्स, ताकि आपको प्रैक्टिस करके समझ में आएगी। एनी डाउट्स गाइस? तो सर ओके ओके, सो डोंट वरी, अगर आपको डाउट्स आ भी रहे होंगे तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अगर आपको अभी डाउट नहीं आएंगे, जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तब डाउट आएंगे, तभी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया कोड का, जब आपको एरर आते हैं या फिर आप ट्राई कैच ब्लॉक में कैसे करते हो। फाइनली देख लेते हैं एक बार, एक फाइनली नाम का ब्लॉक है, ठीक है। अगर आपका एरर आता है या फिर नहीं आता है, फिर भी फाइनली हमेशा प्रिंट होगा, ठीक है। दिस इज फाइनली, ये कोड है, कहाँ पे कोड है, ये फाइनली ब्लॉक के अंदर है, ये फाइनली ब्लॉक है, इसको बोलते हैं फाइनली ब्लॉक, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। तो ना जा, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर ऊपर एरर आए नहीं आए, फिर भी आपका फाइनली हमेशा ही रन होगा। यहाँ पे देखो, दिस इज फाइनली प्रिंट हो गया, मतलब ये फाइनली कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेट्स से आपका एरर कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी कोई भी एरर नहीं आता है, फिर भी आपका फाइनली हमेशा ही प्रिंट होगा, ठीक है। क्योंकि फाइनली का मतलब ही होता है कि जब सब कुछ मेरा ट्राई कैच या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह हो जाए, जो कुछ करना है वो सब फाइनली में करना होता है। यूजुअली फाइनली में क्या करते हैं हम लोग, जो भी क्लीन अप के टास्क होते हैं, अगर आपने कोई डेटाबेस का कनेक्शन ओपन किया होगा तो आपको फाइनली में क्लोज करना होता है, ओके। अगर आपने किसी वेबसाइट के साथ में कनेक्शन ओपन किया होगा तो फाइनली में मे बी आप वो वेबसाइट के साथ का कनेक्शन ओपन करते हो, सॉकेट क्लोज करना होता है, ठीक है। बट फाइनली में हमेशा क्लीन अप का टास्क होता है और फाइनली हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ एरर यू आर गेटिंग। कभी कभी कीबोर्ड इंटरप्ट एक्सेप्शंस होते हैं या फिर एरर होते हैं, फिर भी आपका फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है। तो फाइनली में हमेशा आपका जितना भी क्लीन अप का टास्क होगा वो सब फाइनली में लिखा जाएगा, और वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ट्राई के अंदर आपने रेज किया क्या, कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, फिर भी आपका गुड बाय वर्ल्ड प्रिंट होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि ये फाइनली ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। कभी कभी पाइथन में समझो इट्स काइंड ऑफ फीचर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जहां पे आपको प्री डिफाइंड क्लीन अप एक्शंस होते हैं, कुछ कनेक्शन क्लोज करना, फाइल ओपन करके क्लोज करना। तो आपको पता है अगर फाइल ओपन कर रहे हो
तो क्लोज करना ही है। पाइथन को ही पता है, यूजर ऑफ फाइल ओपन करता है तो वो क्लोज करता ही है, या फिर अगर उसने करना भूल गया तो पाइथन को करना ही पड़ेगा वो क्लोज किसी भी तरह से। तो instead of let instead of leaving that to user, Python has given some predefined cleanup actions, ठीक है, using this with operation, ठीक है। so this with operation is as good as saying कि आपके फाइनली ब्लॉक में जब आप क्लोज करते हो उसी तरह से आप विथ के साथ में जब ओपन करते हो तो आपको फाइनली ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही है इसमें, ठीक है। तो यू जस्ट हैव अ विथ ऑपरेशन विथ स्टेटमेंट, और यू जस्ट हैव अ ओपन, और आपके फाइल का नाम दे दोगे, एंड you will read this file into this variable. So with open this file in this particular variable, और line by line इस फाइल को रीड करो। ओके, सो फॉर लाइन इन f, f क्या है, f is this file, ठीक है। with open as f लिखा है, राइट। सो ये as is saying कि इसका जो भी रिजल्ट रहेगा ओपन का, इसका रिजल्ट इसको असाइन करो। ये सिंटैक्स है, आपको याद करना पड़ेगा या फिर प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका ओपन करना है फाइल, और ये फाइल का जो भी कंटेंट रहेगा या फिर फाइल का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे असाइन होगा एफ को, एंड यू जस्ट लूप ऑफ डू अ लूप अराउंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, गो लाइन बाय लाइन एंड यू प्रिंट। यहाँ ये कोड क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन जा रहा है इस फाइल में और उसको प्रिंट करता है एवरी लाइन को, जितनी भी लाइन से उनको प्रिंट कर रहा है। विथ का अभी के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, जब आप प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि फाइलों में जब आप ये कोड देखते हो विदाउट कॉन्टेक्स्ट तो थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजिंग लगता है, बट ट्रस्ट मी जब आप यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। सो डोंट वरी कि विथ ओपन और ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट जब आप कोड देखोगे रियल में लिखोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा वो, ठीक है। तो इसलिए हाथ से एक बार तो भी लिख के देखना है, और नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चंस पूछने हैं। ये अलग अलग टाइप के एक्सेप्शंस और फिर एरर्स है पाइथन में, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपके एक्सेप्शन है, राइट साइड में आपका कीबोर्ड इंटरप्ट है। कीबोर्ड इंटरप्ट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन। ये सारे जितने भी एरर्स या फिर जितने भी एक्सेप्शन है पाइथन में, वो सब एक बेस क्लास के चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, और उसका नाम है बेस एक्सेप्शन। जितने भी पाइथन में एक्सेप्शन है या फिर एरर्स है वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर एरर से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ये पेरेंट है आपका एक्सेप्शंस का, सो दिस एक्सेप्शंस का पेरेंट क्लास, और ये सब उसके चाइल्ड क्लास है। तो इसके दो चाइल्ड क्लासेस है, एक्सेप्शन और कीबोर्ड इंटरप्ट, ठीक है। आई नो हमारा क्लासेस ऑब्जेक्ट्स ये सेशन हुआ नहीं है, बट आई थिंक जब हम लोग वो सेशन पढ़ेंगे एट दैट टाइम विल रिविजिट दिस। बट अभी के लिए इतना याद रखो कि एक आपका बेस सेशन होता है फिर पेरेंट एक्सेप्शन होता है। अगर आपको पता नहीं होगा एक्सेप्ट ब्लॉक में कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करना है फिर कौन सा एक्सेप्शन कैच करना है, तो आप बेस एक्सेप्शन को कैच कर सकते हो क्योंकि वो सबको कवर कर लेता है, ओके। जैसे कि यहाँ पर कहाँ गया वो कोड, यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं कि 0 division error as e, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो डिवीजन एरर मुझे पता है कि इसमें जब मैं ये कोड ट्राई करने वाला हूं तब मुझे जीरो डिवीजन एरर एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है ये आएगा, हो सकता है, गारंटीड नहीं है आएगा। अगर आता है तो ये कोड एग्जीक्यूट करो, नहीं आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर क्योंकि मैंने कोड लिखा है तो मुझे पता रहना चाहिए कि कौन से एक्सपेक्टेड है मुझे, ओके। लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू एरर डाल देता हूँ। अब क्या हो रहा है, ये वैल्यू एरर जो है वो
1/0 तो जीरो डिवीजन का एरर है, राइट? क्योंकि 1/0 डिवीजन एरर है, जीरो डिवीजन एरर है, वो एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं जाएगा वैल्यू एरर के। ये वैल्यू एरर का एक्सेप्ट ब्लॉक है। इसमें कोड तभी जाएगा जब यहां पर वैल्यू एरर आएगा कोई, जैसे कि ये, दिस इज नॉट अ वैल्यू एरर, राइट? एरर ये और दिस इज टाइप एरर, दिस इज नॉट अ वैल्यू एरर, ठीक है? तो ये टाइप एरर है, ये टाइप एरर था, तो ये टाइप एरर आया, तो ये टाइप एरर का ही कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, नाउ गोइंग बैक टू दिस स्लाइड हियर, टाइप एरर कहाँ पे है आपका? टाइप एरर यहाँ पे है, ठीक है? वैल्यू एरर यहाँ पे है। इसके ऊपर का कोई भी एक्सेप्शन में लिख सकता हूं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर टाइप एरर के जगह पे सिर्फ एक्सेप्शन भी लिख देता हूं, तो भी ये आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन टाइप एरर के ऊपर है, एक्सेप्शन टाइप एरर के ऊपर है, लेकिन मैं इसके नीचे के या फिर इसके लेवल में जितने भी एरर्स है वो यहां पर लिख के एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरा कोड यहां पर जंप करेगा अगर मैं एक्सेप्शन के जगह पे वैल्यू एरर लिख देता हूं, ठीक है? लेकिन मुझे एरर कौन सा आ रहा है? मुझे आ रहा है टाइप एरर। टाइप एरर आ रहा है तो ये इसके अंदर कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट ब्लॉक तो है, लेकिन ये एक्सेप्ट ब्लॉक किसका है? ये वैल्यू एरर का एक्सेप्ट ब्लॉक है, ये टाइप एरर का एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं है। अगर मुझे यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करना है तो मुझे टाइप एरर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, भी यहाँ का एक्सेप्शन ब्लॉक हो जाएगा। या फिर अगर मुझे पता नहीं होगा कौन सा एक्सेप्शन आएगा तो फिर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन लिख सकता हूँ सीधा, ठीक है? और क्योंकि ये एक्सेप्शन कहाँ पर है? टाइप एरर के ऊपर है, तो इसमें से कोई भी एरर आएगा तो ये एक्सेप्शन ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ये जनरल एक्सेप्शंस है और ये स्पेसिफिक एक्सेप्शंस है। जब हम लोग प्रोडक्शन लेवल कोड लिखते हैं तब वी शुड ऑलवेज यूज स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। एक तो टाइप एरर, वैल्यू एरर, वैसे एक्सेप्शंस लिखने होते हैं। ऐसे नहीं कि आप एक ग्लोबल एक्सेप्शन कैच कर लोगे और हैंडल कर लोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से टाइप का एरर एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। Any questions? और हाँ, टेक्स्ट बुक इसके लिए, सॉरी, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, लेट मी जस्ट टेल यू द टेक्स्ट बुक फॉर दिस वन। इसमें था कहीं तो, yeah, I think there is some content here which is on chapter number 191 of our textbook. टेक्स्ट है यहाँ पर पीडीएफ वर्जन ये वाला, okay? इसके चैप्टर 191 पे है थोड़ा सा एक्सेप्शन के बारे में। डिटेल में कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, ये वाला है डीबगिंग, सॉरी। तो चैप्टर नंबर 20 यहाँ पर दिया हुआ है, सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है, उसके बाद में रन टाइम एरर का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 20, ठीक
ठीक है, let's check here, there's something else. That's fine, ठीक है, छोटा सा चैप्टर, एक 7-8 पेजेस का, उससे बड़ा नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और बहुत सिंपल है। सबसे पहले कि जब भी आप कोडिंग करने बैठते हो या फिर कोडिंग का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हो, तो सबसे पहले दिमाग से डर निकालना है कि ये मुझे नहीं आने वाला, ऐसे नहीं समझ में, ऐसे समझ के चलना है कि ये मुझे आने ही वाला है और ये मुझे आना ही चाहिए। उसके बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस से अप्रोच करोगे तो हो जाएगा प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, एनीवेज मैं जब रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तब आपको मिल भी जाएगा इजीली, तो इट वोंट बी डिफिकल्ट टू फाइंड दिस चैप्टर। Okay, next let's go to फाइल रीडिंग या फिर फाइल हैंडलिंग का टॉपिक। पाइथन में जब आप डेटा साइंस करते हो या फिर जनरल पाइथन भी जब करते हो, तब यूजुअली आपको फाइल्स को रीड करने का काम पड़ता है या फिर फाइल्स को क्रिएट करने का काम पड़ता है। जैसे कि डेटा की फाइल होगी, कोई CSV फाइल, एक्सेल फाइल। ओके, तो ये फाइल को आपको रीड करके डेटा को एक्सेस करना है, दैट इज अ फाइल रीड ऑपरेशन। आपने कुछ तो प्रोसेसिंग की है, आपने कुछ तो डेटा जनरेट किया है आपके प्रोग्राम ने, आपको वो फाइल में सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है या फिर कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आपने जो क्रिएट किया हुआ प्रोग्राम का जो डेटा स्ट्रक्चर या फिर सॉल्यूशन है वो चला जाता है। ठीक है, तो फाइल्स यूजुअली परसिस्ट करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को, इसीलिए फाइल्स में इंफॉर्मेशन सेव की जाती है। आपके पास दो मेमोरी होती है, एक होती है हार्ड ड्राइव की मेमोरी और दूसरी होती है रैम, प्राइमरी मेमोरी। जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता है तो सारा का सारा कोड को लगने वाली इंफॉर्मेशन आपके रैम में लोड हो जाती है। ठीक है, और जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तब आपके रैम में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी क्लीन हो जाती है, उसको बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी क्लीन हो जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं उसको। ऑलराइट, सेम थिंग हैपेंस for all kind of programs that you're trying to run. It could be a Python program, C program, C# program, Java program, सारे programs में वही होता है। अगर आपको आपने प्रोसेस किया हुआ डेटा परसिस्ट करना है, सेव करके रखना है, तो फाइल्स ही ऑप्शन है आपके पास। फाइल्स में आपका डेटा स्टोर करके रखना है, मैग्नेटिक डिस्क में या फिर कोई और हार्ड ड्राइव या जो भी जिसमें भी आप स्टोर करते हो, जिसमें इंफॉर्मेशन जब आप कोई राइट करते हो तो परसिस्ट होती है, जैसे कि वैसे रहती है, विदाउट चेंजिंग, विदाउट करप्टिंग। ठीक है, तो वैसे एक स्टोरेज में रखने के लिए आपको फाइल हैंडलिंग करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज राइटिंग इनटू द फाइल। ओके, और पाइथन थ्रू भी ये कर सकते हो आप। रीडिंग फाइल को जब आपको रीड करना होता है, सबसे पहले जब जैसे आप यूजुअली फाइल को ऑपरेशंस करते हैं, अगर आपको कोई एक्सेल फाइल रीड करनी है तो सबसे पहले ओपन करनी पड़ेगी आपको। सेम थिंग पाइथन में भी, सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा फाइल को, फिर उसके बाद में इसके अंदर का कंटेंट आपको रीड कर सकते हो। ओपन करने के बाद में रीड कर लोगे, फिर क्लोज कर दोगे आप। ठीक है, ये विथ ऑपरेशन की वजह से क्या होता है या फिर विथ ऑपरेटर की वजह से क्या होता है, क्लोज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्लोज पाइथन कर देगा आपके लिए। ठीक है, फाइल जो होती है जब आप रीड करते हो तब फाइल को मल्टीपल मोड्स में रीड कर सकते हो आप। आपने कभी कभी आई एम नॉट श्योर कि आप लिनक्स में कभी काम किया है या नहीं किया आपने, लेकिन जब आप फाइल को एक्सेस करने के लिए जाते हैं तो आपके जो परमिशंस होते हैं वो परमिशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फाइल को कौन से मोड में ओपन कर पाते हो। अगर आपके पास रीडिंग का ही परमिशन होगा, देन यू ओपन दैट फाइल ओनली इन द रीड मोड, या फिर रीड मोड में ही ओपन कर सकते हो। राइटिंग का परमिशन होगा तो मे बी यू कैन ओपन इट इन राइट मोड। ठीक है, तो लेवल होता है परमिशंस का, रीड लेवल,
मतलब बेसिक एक्सेस, सिर्फ आपको रीडिंग का एक्सेस है, आप रीड कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते फाइल को, ठीक है। सेकेंड होता है राइटेबल, मॉडिफाइबल, एग्जीक्यूटेबल, ओके, ऑल आर दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स। तो अगर आपके प्रोग्राम को कोई फाइल को रीड करना है तो वो रीड मोड में ओपन करेगा, अगर प्रोग्राम को किसी फाइल में राइट करना है तो राइट मोड में ओपन करेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं जो आपको जब आप फाइल ओपन करते हो तब बताना पड़ता है। फ्लो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। आप सबसे पहले फाइल को क्रिएट करते हो लेट्स से प्रोग्रामेटिकली, फिर आप फाइल को ओपन करते हो। जब आप फाइल को ओपन करते हो तब आपको फाइल का नाम देना होता है और कौन से मोड में ओपन करना है, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड। अपेंड मोड का मतलब होता है जितना फाइल का कंटेंट है उतना वैसे के वैसे रखो और उसके नीचे अपेंड करो चीजों को, दैट इज कॉल्ड एज अपेंड मोड। राइट मोड मतलब राइट, फाइल ओपन करो और सीधा राइट करना शुरू कर दो उसको जीरो पोजीशन से। रीड का मतलब होता है फाइल को ओपन करो और फाइल को लाइन टू लाइन या फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करो। Alright? फिर आप फाइल को ओपन करोगे, अपडेट करना है अपडेट करोगे, रीड करना है रीड करोगे और फिर फाइल को क्लोज कर दोगे और आपका काम हो गया। एक बार फाइल क्लोज हो गई फिर वो जगह पे चली जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके प्रोग्राम ने किसी फाइल को राइट मोड में ओपन किया तो वो फाइल लॉक हो गई है, अभी वो फाइल किसी और को एक्सेस करने के लिए अवेलेबल नहीं है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। कुछ कुछ प्रोग्राम फिर भी एक्सेस कर सकते हैं उस फाइल्स को, लेकिन ऐसे समझो कि अगर आपने किसी फाइल को ओपन किया राइट मोड में, इसका मतलब आप उसके अंदर कुछ लिखने वाले हो, और अगर इसी वक्त किसी और यूजर ने आके उस फाइल को ओपन किया तो उसको आपने जो राइट किया हो वो इंफॉर्मेशन दिखेगा या फिर जो पुरानी इंफॉर्मेशन थी वो दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो यू कैन अज्यूम कि जब फाइल को ओपन कर रहे हो तो आप फाइल को लॉक कर रहे हो राइट मोड में, स्पेशली जब आप फाइल को राइट मोड में ओपन कर रहे हो फाइल लॉक हो रही है, किसी और को एक्सेसिबल नहीं है या फिर किसी और ने एक्सेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी और ने का मतलब होता है किसी और यूजर ने, अगर ये नेटवर्क में फाइल होगी तो एक्सेस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपके कंप्यूटर पे होगी और अगर आप एक ही सिंगल यूजर हो यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ओपन कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, क्योंकि कोई और एक्सेस नहीं कर रहा है। फाइल को हमेशा एक्सेस करने वाले सिर्फ यूजर्स नहीं होते, कभी कभी प्रोग्राम्स भी होते हैं, okay? तो मे बी लेट्स नॉट गेट इनटू दैट विल बिकम टू मच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सब का डिस्कशन। बट इतना याद रखो कि अगर आप फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हो तो फाइल लॉक नहीं होती, यू कैन रीड इट, आपकी तरह बाकी लोग भी रीड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर फाइल को आप राइट मोड में ओपन करते हो तो फाइल लॉक हो जाती है, समझ लो ऐसे, ठीक है। एग्जैक्टली लॉक नहीं होता, वहां पे थोड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। रेस कंडीशंस वगैरह क्रिएट हो सकते हैं, तो बट दैट विल बिकम एन ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कशन, ठीक है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन अज्यूम कि फाइल को आप रीड में ओपन करते हो तो लॉक नहीं होता, राइट में ओपन करते हो तो लॉक हो जाता है। ओके, क्वेश्चंस, डाउट्स? इज एवरीवन एबल टू फॉलो मी? Yes, sir. ओके, गुड। फाइल्स के एडवांटेजेस के बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, फिर भी एक बार फॉर्मली देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी आपने डेटा स्टोर किया होगा या फिर क्रिएट किया होगा वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है जब तक आप उसको मैन्युअली डिलीट नहीं कर देते तब तक। जो आपने डेटा स्टोर किया है तो उसको आप शेयर कर सकते हो, जैसे कि अगर मैंने कोई फाइल की क्रिएट या फिर ये स्लाइड की क्रिएट, अब मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ क्योंकि ये फाइल के फॉर्मेट में है। अगर मैंने फाइल को अपडेट की तो आपके पास अपडेट भी अपने आप आ जाता है, एक सर्टेन स्टेज पे मैं स्टोर कर सकता हूँ। हो सकता है मैं आज थोड़ा सा काम करूँ, कल थोड़ा काम करूँ और धीरे धीरे चीजें ऐड करते जाओ मेरे फाइल में, अपेंड भी कर सकता हूँ मेरे फाइल को। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं फाइल के,
और फाइल बहुत ही वास्ट, और फाइल्स के ऊपर कुछ कुछ लोग पीएचडीज भी करते हैं. इट्स वेरी वास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर्स. ठीक है, फाइल्स के ऊपर रिसर्च बहुत सालों से चल रहा है और अभी भी चल रहा है. अभी भी लोग ट्राई कर रहे हैं फाइल्स को फास्ट कैसे किया जा सकता है. अगर डेटा की एक सर्टेन टाइप का होगा तो फिर उसको किस तरह के फाइल में स्टोर करना है, फाइल के ऊपर कंप्रेशन कैसे करना है, फाइल को शेयर कैसे करना है, फाइल के ऊपर सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है. ऑल ऑफ दैट रिसर्च स्टिल हैपेंस, एंड फाइल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक है, जो आपके डेटाबेसेस होते हैं वहां पर भी फाइल्स होते हैं. जो आप प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हो तब आपको दिखेगा ऐसे डीएलएल फाइल कॉपीड, डॉट टीएक्सटी फाइल कॉपीड, या फिर डॉट एमडी फाइल कॉपीड और रीडमी फाइल प्रेजेंट, राइट. तो ये सब कुछ जो है पूरा फाइल थ्रू ही होता है. ओके, files are very important topics, but since you are studying files from perspective of a data scientist or maybe a data analyst, you don't have to get into exactly files में होता क्या है. But only thing you have to know is there is a way to read the file and you will be reading the file. Okay. और अगर आपको फाइल को रीड करना है तो फाइल का पाथ देना पड़ता है, फाइल एग्जैक्टली प्रेजेंट कहां पर है. ठीक है, तो उसके लिए आपको समथिंग कॉल्ड एज वर्किंग डायरेक्टरी या फिर करंट डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. अगर मुझे पता करना है, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, करता हूँ. ठीक है, तो अभी मेरा जो लोकेशन है सी यूजर्स एज जिड्डेवार, दिस इज कॉल्ड एज माय वर्किंग डायरेक्टरी या फिर करंट डायरेक्टरी. दिस इज माय करंट डायरेक्टरी. अभी मैं इस डायरेक्टरी में प्रेजेंट हूँ. अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज माय करंट डायरेक्टरी या फिर वर्किंग डायरेक्टरी. ठीक है, क्योंकि मैं इस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट हूँ अभी. ठीक है, सेम केस जब मैं कमांड लाइन में रहता हूँ तो दिस इज कॉल्ड एज माय करंट डायरेक्टरी. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पाइथन ओपन करता हूँ और इंपोर्ट ओएस बोलता हूँ, ओएस डॉट गेट वर्किंग डायरेक्टरी बोलता हूँ, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलता हूँ, ये मुझे लोकेशन बताता है कि मैंने कहाँ से पाइथन ओपन किया. मैंने पाइथन यहाँ से ओपन किया. ठीक है, नाउ लेट मी क्विट दिस. और इसके अंदर मैं इस प्रोग्राम के अंदर चला गया, इस फोल्डर के अंदर एंटर हो गया मैं. चेंज डायरेक्टरी, cd चेंज डायरेक्टरी एंड ओपन दिस पर्टिकुलर फोल्डर. जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ ना, डबल क्लिक करके मैं फोल्डर के अंदर आ गया. सेम केस cd से कमांड लाइन थ्रू में फोल्डर के अंदर आ गया. फिर मैं यहाँ पर पाइथन करता हूँ. फिर मैं इंपोर्ट करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम को और गेट गेट वर्किंग डायरेक्टरी करता हूँ. अभी ये क्या बोल रहा है कि आपने जो प्रोग्राम ओपन किया आपने इस पर्टिकुलर लोकेशन से ओपन किया, सो दिस इज कॉल्ड एज करंट डायरेक्टरी. ओके, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब आपको कोई फाइल ओपन करनी होती है तो आपको फाइल का लोकेशन देना पड़ता है. ठीक है, तो फाइल के लोकेशन देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप करंटली कौन से फोल्डर में हो या फिर आप करंटली कौन से वर्किंग डायरेक्टरी में हो, वहां से आप फाइल का लोकेशन दे सकते हो. ओके, तो लेट्स सी एग्जांपल. लेट्स डू this. तो ये मेरा फोल्डर है, कैगल वर्किंग नाम का मेरा फोल्डर का स्ट्रक्चर है. इसके अंदर मेरा हेलो नाम का एक फोल्डर है. ठीक है, इस हेलो नाम का फोल्डर अभी तो एम्प्टी है. तो लेट्स से
मुझे वो फोल्डर के अंदर कोई डेटा ये क्रिएट करना है, तो मे बी आई जस्ट मेक forget the तो ये नाम, ये डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल क्रिएट कर दी मैंने, ठीक है। तो ठीक है, अभी आप सब कुछ भूल जाओ। अभी मुझे क्या करना है, ये फाइल को ओपन करना है, ठीक है। तो द वे आई डू इट इज इंपोर्ट ओएस ओपन, इंपोर्ट ओएस की जरूरत ही नहीं है, ओपन, और मुझे लोकेशन देना है। अगर मैं सिर्फ हेलो डॉट टीएक्सटी लिखता हूँ, ये बोलेगा ओपन कर दी इसको, impossible। Okay. देखो मुझे एरर क्या आ गया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं लोकेशन सही दूं यहाँ पे इसका, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्रिएटेड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। तो ये मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है, दिस इज माई करंट वर्किंग डायरेक्टरी, कैगल वर्किंग एंड वर्किंग डायरेक्टरी ये है मेरा। इसके अंदर दो चीजें हैं, सबसे पहला एक फोल्डर है हेलो नाम का, दूसरा एक फाइल है टेक्स्ट नाम की, ठीक है। तो लेट मी क्रिएट अ फाइल इनसाइड हेलो नाउ, ठीक है। मैंने क्या किया, ये हेलो के अंदर एक फाइल क्रिएट की यहाँ पे, हेलो, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट की temp डॉट टी। तो इसको मैं temp डॉट टी जब मैं बोलता हूँ, अब नो सच फाइल प्रेजेंट, क्योंकि ये हेलो का पाथ अलग है, स्लैश नहीं चाहिए वहां पे, सी। तो इसको फाइल मिल गई अभी, ये हेलो के अंदर temp डॉट टी नाम की फाइल है, ठीक है। सो दिस इज माय वर्किंग डायरेक्टरी। इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर है हेलो, इसके अंदर एक फाइल है हेलो डॉट टी नाम की, ठीक है। तो जब आप ओपन करोगे तब आपको डायरेक्ट पाथ सही देना पड़ता है, अगर पाथ थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो फाइल नॉट फाउंड का एरर आता है, ठीक है। और आई थिंक वी हैव अक्षय हियर। अक्षय, आपको कितनी बार आया था फाइल नॉट फाउंड एरर? यू विल रिमेंबर इट, राइट? Yes, sir. तो फाइल, No. करेक्ट। तो आप जब फाइल्स क्रिएट करते हो या फिर फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, तब आपको फाइल के लोकेशन सही देने पड़ते हैं, नहीं तो बहुत बार एरर्स आते हैं कि फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। और वो विद प्रैक्टिस हो जाएगा, बट इतना याद रखो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और करंट वर्किंग डायरेक्टरी से आगे आपको फाइल का पाथ देना होता है यूजुअली। फाइनली एक और कॉन्सेप्ट है पिकलिंग नाम का। अगर आपको, आपने एक पाइथन का ऑब्जेक्ट बनाया और आपको पता है कि ये प्रोग्राम कभी भी क्रैश हो सकता है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को एज अ फाइल स्टोर करके रख सकते हो, और फिर जब वापस से प्रोग्राम चालू करोगे तब आपको फाइल को रीड करना है। जब आप रीड करोगे आपको पाइथन का ऑब्जेक्ट वापस मिल जाएगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, लेट्स से लिस्ट है ये वाली बनाई हुई है, ठीक है। हेलो, ये एक लिस्ट बनाई है मैंने, ठीक है। इसको एल में रख देता हूँ, एल इक्वल टू एल नाम की एक लिस्ट है, ठीक है। और मुझे पिकल करना है, पिकल करना है मतलब इस फाइल, इस ऑब्जेक्ट को एज अ फाइल सेव करके रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट पिकल, पिकल नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ। पिकल नाम के मॉड्यूल में डॉट डंप्स करता हूँ। डंप करना मतलब फाइल के अंदर डंप करना है मुझे इसको, फाइल का नाम आई
dot pickle file. Yeah, cannot be interpreted as string. I think there's some mistake here. Just a second. को नाम नहीं दिया है क्या इन्होंने? Why is it like this? ओ ओके, ठीक है, समझा। तो डम्प्स ऑब्जेक्ट जो है आपको एक पिकल फॉर्मेट में दे देता है। दिस इज द टेक्स्ट फाइल, दिस इज अ टेक्स्ट, या फिर दिस इज कॉल्ड एज अ बाइट कोड वाला टेक्स्ट। इसको आपको स्टोर करना पड़ेगा फाइल में। तो लेट्स जस्ट डू दैट। आई जस्ट ओपन अ फाइल विथ ओपन temp डॉट पिकल एज एफ। इसको मैं ओपन करता हूँ राइट मोड में, ठीक है, W से राइट मोड में ओपन होता है। तो f डॉट राइट, इट व्हाट, ये चीजें राइट करनी है मुझे इसके अंदर। लेट्स सी दिस वर्क्स। सेकंड, आई नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। राइट, जो फाइल जो ओपन की मैंने राइट मोड में ओपन की, मुझे उसको बाइनरी मोड में ओपन करनी पड़ेगी ताकि मैं बाइनरी टेक्स्ट उसके अंदर डाल सकूं। तो आई जस्ट हैव टू डू दैट हियर। होपफुली दिस वर्क्स। नो, राइट मोड एंड इन बाइनरी मोड, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे फाइल क्रिएट हुई है temp pickle डॉट txt, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस सेशन को स्टॉप करता हूँ। सेशन कहाँ गया मेरा? फाइल स्टॉप सेशन, ठीक है। सेशन को स्टॉप किया, यहाँ पे कोड ओपन किया, एल को मैंने प्रिंट किया। सेशन स्टार्ट हो रहा है, अभी देखते हैं एल में क्या वैल्यू आती है। ऑब्वियसली आपको एरर आएगा कि एल नॉट फाउंड या फिर ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है ये सेशन। अभी सेशन स्टार्ट जब हुआ, मैंने किल किया, तब मेरे मेमोरी के अंदर जो ये मेरा वेरिएबल था वो चला गया। दिस इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड आपको एरर आ गया विच इज एल इज नॉट डिफाइंड। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट्स जस्ट गेट एल, ठीक है। हाउ डू वी गेट एल? विल ओपन द फाइल। फर्स्टली आई नीड टू इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, विल जस्ट ओपन द फाइल विथ ओपन। फाइल का नाम क्या है? temp pickle dot pkl. Open this in read mode, read and byte mode, f dot read. Thanks. So L. Let's see what happens here. क्या बोल रहा है ये? वो such file. Okay. Why? I think ये सेशन डिलीट होते ही यहाँ की फाइल डिलीट हो जा रही है यहाँ पे इसमें। Weird. Kaggle में फाइल डिलीट हो जाती है सेशन डिलीट करते ही। तो ठीक है, इट्स फाइन। लेट मी डू इट अगेन। सबसे पहले मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसको फाइल्स में सेव करता हूँ। होपफुली अभी फाइल सेव हो जाती है। आई विल सेव दिस वन, सेव स्पेसिफाइड, ठीक है। वेरिएबल एंड फाइल्स परसिस्ट करने हैं मुझे, ये सिर्फ फाइल परसिस्ट करनी है, वेरिएबल नहीं परसिस्ट करने। सॉरी गाइस। ये फाइल परसिस्ट होते हैं। अभी मैं इसको सेशन को क्लोज करता हूँ, ये वाले सेशन स्टॉप, ठीक है। सेशन स्टॉप किया। होपफुली अभी सेशन स्टार्ट करता हूँ तभी फाइल प्रेजेंट रहेगी अभी भी। ओके, ये फाइल अभी भी प्रेजेंट है, डिलीट नहीं हुई मेरी। थोड़ी देर पहले वो फाइल डिलीट हो गई थी।
And this. Yes. Doubt. ओके अश्मिता, आई गेट बैक टू यू, ठीक है, थोड़ी देर में। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने फाइल में स्टोर किया। स्टोर करने का रीजन ये था कि जब मैं वापस से एक्सेस करूं तो मुझे ये ऑब्जेक्ट वापस मिल जाना चाहिए। तो अगर मुझे इसको पाइथन के इसमें कन्वर्ट करना है लिस्ट में, तो आई जस्ट से इंपोर्ट पिकल डॉट लोड्स नाम का एक फंक्शन होता है जो मुझे लोड करके दे देगा। सो लोड्स नहीं है, like objects required not list. एक सेकंड अश्मिता, मैं आ रहा हूँ, I'll get back to you in some time, okay? pickle dot loads सही तो है ये, pickle dot loads then guys, pickle dot loads not open. What exactly does it require? डंप से तो फाइल के अंदर चला गया। I'll explain this in the next session, ठीक है? Now let's discuss what doubts Ashmita is having, ठीक है? Let's not get ahead here. Idea is कि आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो पाइथन में, जब आपको वापस से एक्सेस करने होते हैं सेशन डिलीट होने के बाद में भी, तब आप उसको पिकल कर सकते हो और उसको लोड से ऑब्जेक्ट वापस ले सकते हो, ताकि आपको फिर से रीरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये पूरे फाइल को, ठीक है? अगर लेट्स से फाइल को एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है और कोई तो प्री प्रोसेसिंग करके आपने एक सर्टेन पोजीशन में पहुंच गए, तो आपको सेव करना होता है। जैसे कि मॉडल जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो मॉडलिंग में टाइम लगता है, राइट? मॉडल ट्रेनिंग में टाइम लगता है, पैरामीटर्स क्रिएट करने में टाइम लगता है। तो ये सारा टाइम जब आप स्पेंड करते हो कंप्यूट पावर के साथ, तो ये वेस्ट नहीं हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप उसको फाइल में स्टोर करके रखते हो मॉडल्स को आपके, ओके? तो फाइल्स में स्टोर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पिकलिंग इज वन वे ऑफ स्टोरिंग इट, राइट? तो अगर आप फाइल में स्टोर कर सकते हो तो फाइल से रीड भी कर सकते हो। दैट इज द मेन गोल ऑफ हैविंग द फाइल रीड एंड राइट, ओके? All right, now let me just do one thing. Let me stop the recording and then we'll talk about the issues.